हाईवे के बीच में उल्टे चल रहे हैं। यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले। Another day and welcome to another ride. Today it's 17th of May, a Sunday, and I'm going out for a Sunday ride after quite a long time. So yeah, I thought I might take you along with me. Well, this was supposed to be a vlog of me going to the DGR, the Distinguished Gentleman's Ride. And if you don't know what that is, it's a globally organized ride, and it is to spread awareness for men's mental health. And the initial plan was to go there. I was registered for it and everything. But then you see, for my city, the registrations were initially free. They didn't add a price on the registration itself. But they introduced these coupons, food coupons and coupons for getting goodies. And I'm like, bro, first of all, I don't need your goodies. And second of all, if I am paying for my food coupon, why do I have to eat the food of your choice? They have tie-ups with the selective restaurants or some kind of cafe, and they're like, you'll have to purchase your coupon and then you will be given access to food. And obviously the food is pre-decided, and I'm like, well, I'll just catch up with a few fellow creators from Tri-City, fellow riders, and we can go out for a ride of our own. Because honestly speaking, I don't like the concept of paying for my own food and then not even getting to pick what I have to eat. मैं खुद पैसे दे रहा हूँ तो मैं obviously अपनी मर्ज़ी का खाना खाना चाहूँगा, not some random shit. तो ठीक है, I decided to drop the DGR and अभी I'm gonna go meet up with Cafe Racer 98 and one of his friends. तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है. हाँ, what is that place to unload the people? Unload. I am not able to find the right word for it right now, but ऐसे चौक के बीच में कौन सवारी उतारता भाई, और लोग भी बिल्कुल रैंडम बीच में खड़े हैं. वेल, इट्स इंडिया. नथिंग अमेजेस मी एनीमोर. कुछ भी होता है भाई. वो देखो, हाईवे के बीच में उल्टे चल रहे हैं, नो हेलमेट्स, और आपस में गप्पे मारनी ज़्यादा ज़रूरी है. क्या ही बोल सकते हैं भाई. Then there are these guys. There's 3 of them on a single bike, none of them wearing helmets, and they are holding 2 helmets, just chilling. हाथ में ना लग जाए. इनके हाथ इनके लिए बचाने इनके सिर से ज़्यादा ज़रूरी है, because clearly they don't have any brains to be protecting. So yeah, सही है. I'll give it to them for at least having helmets in the first place. पहनना ना पहनना तो तुम्हारे पास दिमाग कितना उस पर डिपेंड करता है. Every time I take my bike out, it's the exact same things that I see, man. It's a red light and I'm at the front. Let's have a little bit of fun. Well, while taking all precautions properly. I do not advise you guys to be doing this. But man, that exhaust. Okay, that was enough fun. The road ahead is no longer empty, so we get back to doing safe speeds.
नहीं मतलब सही है. You are on a two-wheeler and you are supposed to be a little bit free here and there. तो इतनी लिबर्टी तो मैं खुद को दे देता हूँ कभी कभी बीच में, चलता है. What a fun day it is, right? संडे वाला दिन है. पहले आई वाज थिंकिंग कि आराम से सो जाता हूँ जब DJR का प्लान कैंसिल हो ही रहा है तो क्या ही करना है जाके. बट देन आई वाज लाइक कि यार इतना अच्छा संडे है, सो के भी क्या वेस्ट करना. निकलते हैं कहीं राइड पे, और नहीं कुछ तो थोड़ा कंटेंट बना लेंगे. एंड आई रियली हैवंट बीन वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. अभी इंस्टाग्राम पे भी पिछले 1-1.5 हफ्ते से मैंने थोड़ा कंसिस्टेंटली रील्स अपलोड करना शुरू किया है. तो देखते हैं, वील गेट बैक इनटू द गेम स्लोली एंड स्टेडीली. लेकिन इस बार कंसिस्टेंट रहने का प्रॉमिस नहीं करूँगा भाई, क्योंकि पिछली वीडियो डाले हुए मुझे 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं. एंड या लेट्स सी. बाकी देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ होप बिकॉज यू नो समथिंग इज़ हैपनिंग वेरी सून. एंड I'm not gonna tell you yet what that something is, but it's a little bit of gamble. ठीक है, देखते हैं क्या होता है. अगर जो सोचा है वो हुआ तो कंटेंट बनाने में मज़ा बहुत आएगा और तुम लोगों को देखने में मज़ा बहुत आएगा. So yeah, let's see if things go according to plan or not. Well, they usually don't, पर देखते हैं. You never know. किस्मत कब आपका साथ दे दे. Why is he riding the bike in shorts? भाई टांगे प्यारी नहीं है क्या तुझे अपनी? हर गर्मियों के मौसम में यू आर राइडिंग अ हंटर इन शॉर्ट्स. तो पहले तो इंजन हीट इतनी ज़्यादा होती है, गलती से कहीं फिसल जाए तो तुम्हारी टांगों की हड्डियाँ ही बचेंगी फिर. भाई साहब, एंड इट्स नॉट लाइक कि ही इज़ राइडिंग वेरी स्लो और कि यू नो ऐसा कुछ सामान वामान लेने अगली गली तक जाना है तो शॉर्ट्स में ही चले गए. नोप. Bro is on a full-fledged highway wearing the cheapest possible Steelbird helmet, and I'm pretty sure he is not wearing that for any kind of safety. It's just there to prevent him from getting a challan. क्या ही बोले भाई. Also I am being a little bit extra cautious right now क्योंकि that nice right there is a cop car. I just saw a cop sitting in it. बाकी कोई दिक्कत नहीं है. I always ride within the speed limits, but my exhaust right now is a little problematic since I no longer have a DB killer for it anymore. पिछले साल जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो DB killer का एक्सल नट कहीं गिर गया था when I crashed, and उसके बाद while cruising on a highway one day the DB killer just flew off and I couldn't find where it went. So yeah, there's that. देखते हैं. I thought about purchasing a new one, but the AEW folks are selling a DB killer for this exhaust for 1,000 rupees. ऐसा था, मैं कहा भाई 4500 रुपये के एग्जॉस्ट के लिए 1000 रुपये का DB killer तो मैं नहीं खरीदूँगा. तो देखते हैं, मे बी इफ़ आई कैन फाइंड अ यूनिवर्सल वन और गेट अ कस्टम वन मेड फॉर इट, I'll do something about it because being so loud all the time is not a very nice thing. अभी तो हाईवे रन पे जा रहे हैं तो चलता है, बट सिटी में बाइक चलानी हो, खासकर पहाड़ों में, तो यार क्यों लोगों को अनॉय करना. अरे भाई बाद में फ़ोन चलाने ना यार. हाईवे पे सड़क क्रॉस कर रहे हो बिना पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के, क्या ही बोले. लोगों के एक ही जैसे हाल है, वो गाड़ी के अंदर हो या बाहर. देयर इज़ एन एब्सोल्यूट ड्राउट व्हेन यू टॉक अबाउट सिविक सेंस. है नहीं भाई, एग्जिस्ट ही नहीं करती, सूखा पड़ा है सिविक सेंस के नाम पे. सो फाइनली मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गए. आई जस्ट हैव टू गो ओवर देयर एंड आई सी अ बाइक पार्क देयर दैट माइट बी द गाय वेटिंग फॉर मी. नॉट रियली श्योर अबाउट इट, देखते हैं जाके. आई एम
Surprisingly almost on time. Rare occasion, but that's fine. Is it him? It's him. क्या हाल है सर? बढ़िया. ज़्यादा वेट तो नहीं कराया? मैं क्या ज़्यादा वेट तो नहीं कराया? अभी पहुँचे? ठीक है. Why is this dude stopping in the middle of the road? भाई कैसे कैसे नमूने होते हैं सड़क पर संडे वाले दिन. इसीलिए दिस इज़ द एग्जैक्ट गॉड डैम रीज़न आई डोंट लाइक कमिंग ऑन राइड्स ऑन संडेज. भाई इतने ज़्यादा अलग अलग तरह के आइटम निकलते हैं ना सड़क पे, बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है. Man, that 650 exhaust screams so good. And it just feels so good to be in the mountains, right? This fresh air, there are clear blue skies, and of course there are these curvy roads to enjoy. भाई अलग ही मज़ा है पहाड़ों में होने का. कहाँ अभी मैं घर पे बैठा या तो सो रहा होता या कपड़े धो रहा होता, यू नो, संडे शेनैनिगन्स. वेल एनीवे, कपड़े तो अभी भी धोने ही पड़ेंगे वापस घर जाके, बट ठीक है यार, थोड़ा सा खुद को एंजॉय करना भी बनता है. ऑल्सो मॉल एंड हिज 650 आर nowhere to be seen. Yeah, he's the kind of guy who likes to gun his bike on the curves, unlike me. मेरे को ऐसे प्यार प्यार से चलाने में मज़ा आता है, मोड़ों पे खासकर, यू नो, टेकिंग इट इजी, एंजॉइंग एवरी लीन एंड कॉर्नर. दैट्स फन. पर अभी एक गाड़ी वाला मेरा व्यू ख़राब कर रहा है और उसके साथ मेरा मूड भी. इससे आगे तो निकलना ही पड़ेगा. जैसे ही मैंने आगे निकलने की बात की, श्रीमान ने गाड़ी भगानी शुरू की. ये भी ठीक है. Yeah, so me being me, I completely forgot that I was making a YouTube vlog, and we had breakfast, sat there for a while, talked about life, and you know, just made fun of each other for a while. उसके बाद we went and filmed some clips for the Man and Motorcycle. We met him there, and अरे भाई बिना इंडिकेटर के कहीं भी रुक रहे हो, ये क्या बात हुई. Anyways, we had a little bit of fun there, and I got to ride a GT. और भाई सलाम है मेरा उन लोगों को जो रोज़ GT चलाते हैं, जो लॉन्ग राइड्स पे GT लेके जाते हैं. लाइक भाई, दैट इज़ वन हेल ऑफ अ अनकम्फर्टेबल बाइक. कैसे ही चलाते हो तुम लोगों से, मुझे समझ नहीं आता. It was taking so much effort to, you know, lean and corner that bike. दिमाग का दही हो गया था भाई उसको चलाते हुए. बट ठीक है, it is fun, it is peppy, and the exhaust note भाई बहुत प्यारी आवाज़ है. उस पर AEW के एग्जॉस्ट लगे हुए थे, एंड मैंने रिकॉर्ड किया है फॉर रील्स, शॉर्ट्स एंड स्टफ. तो मैं डालूँगा. यू हैव टू, यू नो, look out for those uploads as well. But ठीक है, it was quite a decent experience, other than the fact कि वो चलाने के बाद मेरी कमर अभी तक दुख रही है. नहीं ठीक है, सही है. मैंने पहली बार इंटरसेप्टर चलाई थी. लाइक मैं इंटरसेप्टर चलाने वाले एक्सपीरियंस को जनरली अपने काउंट नहीं करता, बिकॉज इट वाज लाइक कितना मुश्किल से 1 किलोमीटर के लिए ऑन बैक रोड्स, तो बहुत प्यार प्यार से चला रहा था. ना फेल्ट भाई कि इंटरसेप्टर मैन्यूवर करनी कितनी मुश्किल है. देन आई रोड द GT टुडे फॉर अबाउट 2-3 किलोमीटर्स, एंड द GT इज़ इवन हार्डर टू मैन्यूवर भाई. द सिटिंग पोस्चर इज़ लाइक, मुझे ऐसा फील हो रहा था मैं स्टॉक हंटर पे क्लिप ऑन्स लगा दिए एंड
बजाय आगे वाले फुटपैक्स के मैं पीछे वाले फुटपैक्स पे पाँव रख के चला रहा हूँ. इट फेल्ट सो वियर्ड. बट ठीक है, यू गेट यूज्ड टू इट वंस यू ओन द बाइक. सही है. नॉट माई काइंड ऑफ बाइक टू राइड, बट मज़ा आया. और लाइक आई सेड बिफोर, आई विल से इट अगेन भाई, एग्जॉस्ट नोट इतना ज़्यादा प्यारा कि क्या ही कहूँ. उस पर या AWT103 आई गेस एग्जॉस्ट में हुआ था. नॉट वेरी श्योर बट साउंडेड रियली नाइस. उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं हमारे मौला भाई के, जिन्होंने मुझे अपनी बाइक चलाने दी. एंड हिज कंडीशन वाज कि भाई बेंड पाइप स्क्रैप मत करना. मैं ऐसा था, मैं बेंड पाइप स्क्रैप, और मैं अपनी बाइक लीन नहीं करता. वाई वुड आई scrape the bend pipes of someone else's bike by. I'm a really safe and a calm rider. So yeah, it was a good day. But अभी थोड़ा सा बाइक में एक इशू आ गया है. Not sure why, but even though मैंने कुछ 500-700 किलोमीटर पहले ही मेजर सर्विस कराई है 20,000 किलोमीटर्स वाली, and the tappets and everything should have been adjusted in that, but काफ़ी ज़्यादा सिवियर टैपर नॉइस आ रहा है अभी बाइक में से. तो आई कॉल्ड अप आर्या, माई फ्रेंड, एंड सेंट हिम अ वीडियो अबाउट द नॉइज दैट द बाइक इज़ मेकिंग, एंड ही सेंट मी अ लोकेशन ऑफ अ मैकेनिक. तो अभी उस मैकेनिक पे जाके चेक कराता हूँ. बट आर्या वाज प्रीटी श्योर दैट इट्स द टैबेट्स. इनफैक्ट वो अपना नोएडा में वो किसी मैकेनिक के पास ही था, तो ही शोड द मैकेनिक एज वेल, एंड इवन दैट मैकेनिक सेड इट्स द टैबेट्स. बाकी देखते हैं, चेक करवाते हैं अभी जाके. टैबलेट्स हो तो सही है यार, सस्ते में निपट जाऊँगा. पिस्टन नॉकिंग वॉकिंग हुई तो काम ख़राब हो जाएगा थोड़ा. खर्चा ही खर्चा होगा. वो मीम याद आ गया मुझे, लाडले प्रेग्नेंट तो तू होगा जब तेरी बाइक की सर्विस होगी. ठीक है, देखते हैं क्या बनता है. काम तो कराना ही पड़ेगा भाई, बाइक चलानी है तो मेंटेन्ड और एकदम टिप टॉप कंडीशन में तो रखनी पड़ती है. सो अपेरेंटली इट्स जस्ट द टैपेट्स दैट नीड एडजस्टिंग. एंड अभी भैया ने बोला कि 2-2.5 घंटे आराम से लग जाएंगे. इतना टाइम मेरे पे भी नहीं है अभी, और गर्मी हो रही है बहुत ही ज़्यादा. बट समथिंग फ़नी हैपेंड. यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, एंड आगे सिग्नल भी है. तो सिग्नल पे गाय स्टॉप्ड. थोड़े होंगे 50s में. एक अंकल थे, उनकी वाइफ पीछे बैठी थी, एंड हेलमेट था स्कूटी पे नीचे रखा है, पहना नहीं हुआ है. एंड पुलिस वाले ने रोका, एंड हिज वाइफ लिटरली स्टार्टेड क्राइंग कि सर हम तो गरीब हैं, हमें जाने दो, हम गरीबी के मारे हुए हैं, अब आप भी हमसे पैसे ले लो, ये है वो है एंड ऑल दैट. मैं भाई आई डोंट वांट टू इंटरफेयर, सो आई डोंट स्पीक. बट फिर पुलिस वाले ने भी देखा थोड़ा, एंड ही जस्ट लेट देम गो कि भाई रोने ही लग गई आंटी, तो मैं क्या ही बोलूँ, जाने दिया. बट द थिंग इज़ कि भाई गरीबी में तुम कह रहे हो कि पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, बट उसी गरीबी में अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और हेलमेट ना पहनने की वजह से कोई मेजर इंजरी हो गई, तब भी तो तुम्हारे ही पैसे लगेंगे ना इलाज कराने के लिए. फिर क्या करोगे तुम लोग? वाई डोंट पीपल अंडरस्टैंड सच बेसिक स्टफ़. भाई हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए यार. हेलमेट पहना करो, ओबे ट्रैफिक रूल्स. रेड सिग्नल है तो रुको. और हेलमेट सिर्फ बाइक चलाने वाले को नहीं पहनना है, तुम्हारे पीछे पिलन बैठा तो उसे भी पहनाओ यार. देयर स्कल इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. ब्रो वांट्स टू मेक हिज कार फ्लाई. भाई चला जा, फ्लाइंग गियर डाल, ऊपर से उड़ा. फ्लाई ओवर के ऊपर से फ्लाई ओवर करके जा. पता नहीं कौन सा सड़ा हुआ खड़ूस अंकल है भाई. इतनी ज़्यादा पेशेंस की कमी हो गई है ना लोगों में. एंड आई यूज्ड टू थिंक इट्स अ प्रॉब्लम विद आवर जनरेशन ओनली, बट नोप, आई वाज रॉन्ग. अंकल लोग भी
एकदम ऐसा इम्पेशेंट होके टी 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 टी। अरे भाई रुक जाओ, सब्र करो, आगे भी जाम ही लगा है, ट्रैफिक लाइट लाल है, कहाँ जाओगे? लेकिन नहीं, हॉर्न बजा बजा के सबका दिमाग ख़राब करना है। ओह, थैंक यू कार गाय, थैंक यू फॉर बीइंग सो इम्पेशेंट। आपकी इम्पेशेंस से मुझे थोड़ी छाँव मिल गई। एक्चुअली इफ़ यू एक्सक्यूज़ मी अ लिटिल, मुझे पूरी ही छाँव मिल जाएगी। नाइस, अब ठीक है, अब करूँगा मैं सिग्नल का वेट। बढ़िया। सो आई स्टॉप्ड फॉर अ क्विक हाइड्रेशन ब्रेक। बढ़िया सा गन्ने का जूस पिया मैंने। अभी चलते हैं घर की ओर। एंड आई ऑलमोस्ट गॉट अ मिनी हार्ट अटैक बिकॉज रास्ते मैंने GTA क्लिप्स बनाने के लिए माइक निकाला था एंड बैग में लगाया था बिकॉज आई वांटेड टू रिकॉर्ड दैट। हाँ, नहीं, wanted to record that ASMR sound and well, अरे भाई ने पूरा डिस्ट्रैक्ट ही कर दिया बीच में, उसके क्या बोल रहा था मैं। हाँ, I took out the mic from my helmet to record that ASMR sound while I was riding the GT। और मैंने जब बैग में से माइक निकाला तो द मैग्नेट केम ऑफ एंड इट फेल इनसाइड द पॉकेट ऑफ द बैग। उस टाइम दोस्तों के साथ था, ज़्यादा ध्यान दिया नहीं एंड वापस आते हुए भी जब ब्लॉक करते हुए लगाया तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं गन्ने का जूस पीने रुका, मैंने माइक निकाला, मैं देख रहा हूँ मैग्नेट तो है ही नहीं। आई वाज लाइक अरे ये तो नुकसान हो गया। आई थॉट मैंने मैग्नेट के साथ ही ऐसा हेलमेट में लगा दिया है एंड द मैग्नेट फेल डाउन समवेयर। बट फिर अभी ढंग से चेक किया बैग में तो बैग के पॉकेट में ही था मैग्नेट एंड आई वाज लकी इनफ, बच गया। चलो अभी कैमरा की बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है, सो आई थिंक दिस वुड बी अ गुड प्लेस टू एंड द व्लॉग। एंड बीच में अगर ऑडियो व्लॉग के आज ख़राब आई हो तो यार सॉरी। वही ASMR के लिए रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा की सेटिंग्स चेंज की थी टू कैप्चर दैट एग्जॉस्ट नोट प्रॉपर्ली एंड वापस से ऑडियो सेटिंग्स पे करना भूल गया मैं उसे। वहाँ से वापस आते हुए पूरा व्लॉग ऐसे ASMR वाली सेटिंग पे रिकॉर्ड कर लिया। मेरी आवाज़ तो होपफुली आ ही गई होगी, लेकिन आसपास का शोर और विंड नॉइज़ बहुत आया होगा, तो आसपास के विंड नॉइज़ और शोर को एक वीडियो के लिए झेल लेना यार। आगे से ध्यान रखूँगा कि थोड़ा ऑडियो सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी भूलूँ ना, विच आई नो कि मैं भूलूँगा ऑफ कोर्स बिकॉज गोल्ड फिश मेमोरी। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही था यार। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, भले ही हमेशा सबका रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट या चीयर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।